A very good morning, students. Once again, I welcome you to the online classes, and I believe you have seen the yesterday's video, and you are also gone through the book or the chapter, and I believe that you are doing well at home, right? You are safe. You're keeping yourself safe at home, and you are studying what we have given to the as the online classes. Now, welcome to the second day of our online classes, and today, before we start, I want to give you some of the instructions which some of the students asked me. They called me, they messaged me, and they asked me how to send their homework, how to use the query group and all. Now, as you all know, that every subject has its own query group, right? You have different kind of groups. You have first your class group, and then you have all subject groups. Okay, that means you have a ninth class group where you get all the links and everything, and then you have a query group of English, Hindi, science, social science, and everything. Okay, so what you do in this means when you see a link from your class group, you watch the video, and when you get some kind of questions in your mind related to the subject, you go to the query group of the particular subject and you go and type the question, yours question to the in the group. So the teacher will find out uh, what is the question, and he will try, or he or she will be trying to address that in the next video. So you should understand that first thing, the query group. Second thing, what we are telling is to send the homeworks, right? So every time you will be getting a homework, and you have to, what you have to do is you have to send the homework by taking the picture, or taking by clicking the picture, and then you will be sending in the query group. Okay, you will be sending it in the query group. Now, one thing you have to mention is that when you send the homework, you have to think that maybe this is your paper. Okay, this is your notebook, this is the paper. You have written something here. Okay, you have done your homework. At the top of the paper, you have to write your name and class. Understood? You have to write your name and class, then take a picture from your phone and send it to the group. Understood? Now you should make, okay, it is not necessary there will be one page. It can be have more than one page, no problem. How many pages it is, you have to write on each page, on every page you have to write your name and class. Okay, like this, and then click the pictures and then send to the group. So with this we will understand, okay, it is coming from you. Understood? So you have to send like this. Okay, and then the other is for higher classes, for ninth class, as you all know that we have given homework for the summer vacation homework, and even the chapters what we have completed before, you have to complete the homework. So in the coming days, you will be in the coming days, maybe in 2-3 days, you will be sending like this all your homework, your summer vacation work, and all the first 2-3 chapters, then Moments first chapter, all question answers, everything you will be sending one by one to the group, query group. Now, as you know, today is Saturday, and the group is now admin only. But once this video is gone online, evening we will change the admin from, we will change it to the participants group, and from the Saturday afternoon you can send this links or this pictures to the phone. ओके, होप यू अंडरस्टूड दिस थिंग. नाउ जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमारे पास जो है ग्रुप, दो तरीके के ग्रुप हैं हमारे पास. एक तो आपका क्लास ग्रुप है, और एक जो है सारे सब्जेक्टों के अलग अलग ग्रुप हैं जिनको हम क्वेरी ग्रुप कह रहे हैं. ठीक है, जब क्वेरी ग्रुप आप यूज करेंगे तो उसके अंदर जो है आप लोगों को अपने होमवर्क वगैरह भेजना है, या आपको कुछ क्वेश्चन है रिलेटेड टू द सब्जेक्ट, अगर कोई क्वेश्चन है तो आप उन क्वेश्चंस को टाइप करके उसमें भेज सकते हैं. मगर आपको ध्यान रखना है कि जब वो आप भेजते हैं तो सिर्फ क्वेश्चन से हो, और कुछ बात हमें ग्रुप में नहीं करनी है. किसी भी प्रकार की कोई भी बातें ग्रुप में नहीं होगी. उस ग्रुप में सिर्फ सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे और होमवर्क आएंगे. होमवर्क जैसे मैंने बताया आपको, फर्स्ट पेपर, जैसे आपका ये पेपर है, 3-4 पेपर का एक होमवर्क है, तो आपने ये पेपर लिया,
उस पे आपने ऊपर लिख दिया, ये नोटबुक है आपकी मान लो, तो सबसे पहले ऊपर आपने अपना नाम और क्लास लिखा, आपने इसकी फोटो ले ली। दूसरा पेज आपने खोला, उस पे भी ऊपर सबसे ऊपर आपका नाम और क्लास लिखा, उसकी पिक्चर ले ली। तो ऐसे करके आप 3-4 लेने के बाद आप इस क्वेरी ग्रुप में डालेंगे। आपका नाम लिखना बहुत जरूरी है, तभी हमें पता चलेगा कि ये आपकी तरफ से ही आया है, ठीक है। और इसके रिलेटेड ही आपको जो है अटेंडेंस मिलेगा। जो बच्चा होमवर्क टाइम टू टाइम देखेगा, जो टाइम टू टाइम उसको पोस्ट करेगा, उन बच्चों को ही अटेंडेंस प्रॉपरली मिलेगा। ये आपको ध्यान रखना है। और एक बार जब स्कूल खुलेंगे तो हम दोबारा चेक करेंगे, और जिनका काम कंप्लीट है, जिन्होंने ऑनलाइन के टाइम पे भी जिन्होंने ये काम प्रॉपरली सबमिट किया है, उन्हीं को इंटरनल मार्क्स सही मिलेंगे, नहीं तो नहीं मिलेंगे। आपको ये ध्यान रखना है। इट इज वेरी स्ट्रिक्ट about this, we are very strict about this. Now this is online classes, starting में हम सबको थोड़ी बहुत problems तो आएंगी, no problem, we will start very slow but we have to do it in a proper manner, ठीक है। Now Saturday, ये वीडियो आज सैटरडे को आया है, तो आपको पता है कि ये अभी हमारा जो ग्रुप है, क्वेरी ग्रुप, इंग्लिश में जो क्वेरी ग्रुप बना हुआ है वो एडमिन ओनली बना हुआ है। इसको आफ्टरनून तक उसको हम जो है पार्टिसिपेंट उसको चेंज कर दिया जाएगा, और फिर उसके बाद जो है आप क्या करेंगे, एक एक करके जो पुराने होमवर्क है हमारे, बिहाइव का 1, 2, 3 चैप्टर, मोमेंट का फर्स्ट चैप्टर और समर वेकेशन वर्क जो है, उसको आप ऐसे फोटो ले लेके आप भेजेंगे। जो आपके दोस्त हैं, ठीक है, दूसरे आपकी ही क्लास के दूसरे जो दोस्त लोग हैं, उनको भी आपको कहना है कि फोटो सेंड करें, ठीक है। अगर वो नहीं कर रहे हैं तो उनको कहना है आपको, अगर वो वीडियोस नहीं देख रहे हैं तो आपको कहना है कि उनकी अटेंडेंस नहीं लगेगी। अगर वो होमवर्क नहीं भेजेंगे, उनकी अटेंडेंस नहीं लगेगी। सैटरडे को जब ये वीडियो आपके पास आएगा तो सैटरडे आपके पास टाइम है, सैटरडे संडे आपके पास टाइम है, यहाँ तक कि मंडे को भी आपका टाइम है। मंडे के अंदर अंदर आपको सारे होमवर्क जो है वो एक एक करके इसके अंदर भेजना है, इस ग्रुप में भेजना है विथ नेम, and then I will put the attendance according to the rank. Hope you understood this. This is very serious thing. और उस ग्रुप के अंदर कोई भी फालतू की बातें नहीं करेगा। नो, none work or we don't have to speak anything else other than the subject. सब्जेक्ट के अलावा हमें कोई बात नहीं करनी है, किसी भी प्रकार की बात हमें सब्जेक्ट के अलावा नहीं करना। आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेश्चन है, आप पूछिए। आपको होमवर्क भेजना है, उसके अलावा आपको कोई बात नहीं करनी है, ठीक है। तो इतना इंस्ट्रक्शन आपको समझ में आ गया। तो पिछले वीडियो में वी वर लुकिंग टू द सेकंड चैप्टर ऑफ आवर मोमेंट्स बुक, दैट इज द एडवेंचर ऑफ टोटो। नाउ एडवेंचर ऑफ टोटो हमने स्टार्ट कर लिया था, एंड वी हैव आल्सो सीन द 2 पैराग्राफ्स, फर्स्ट 2 पैराग्राफ्स of this chapter, ठीक है। Now let's open your books, let's open our books and let's see what is the next paragraph says, or what is the recap, or what is the introduction of that chapter again, ठीक है। हमने पिछले दिन, आप, मैं मानता हूँ सब लोगों ने बुक खोल ली है ना, तो यस, फर्स्ट 2 पैराग्राफ में हमने देखा कि ग्रैंडफादर जो है, हमारे ग्रैंडफादर को एक टोटो, एक बेबी मंकी मिलता है। कहाँ पे? एक टोंगा ड्राइवर या टांगा ड्राइवर के पास मिलता है, और उससे ग्रैंडफादर जो है उससे 5 रुपए में खरीद लेते हैं। और उसके बाद सेकंड पैराग्राफ में हम देखते हैं टोटो के बारे में बताया गया है कि टोटो का डिस्क्रिप्शन दिया गया है कि उसके दांतों के बारे में बताया, उसके आंखों के बारे में बताया, उसके टेल, उसकी पूंछ के बारे में वहां पे बताया गया है कि कैसे वो अपनी पूंछ को एज अ थर्ड हैंड, तीसरे हाथ की तरह वो यूज करता था, ठीक है। उसके बाद का हम पढ़ना चालू करेंगे। प्लीज ओपन योर बुक्स एंड थर्ड पैराग्राफ हम देख रहे हैं अभी। Grandmother always fused when grandfather brought home some new bird or animal. So it was decided that Toto's presence should be kept a secret from her until she was in a particularly good mood. Grandfather and I put him away in a little closet opening into my bedroom wall, where he was tied securely, or so we thought, to a peg fastened into the wall. थर्ड पैराग्राफ क्या कहता है कि grandmother always fused when grandfather brought home some new bird or animal. तो जब भी कोई नया जानवर, जब भी ग्रैंडफादर जो है नया जानवर लेके घर पे आते थे, तो ग्रैंडमदर बहुत ही ज्यादा चिंतित हो जाती थी, वरी करने लगते। फ्यूज मतलब एक तरीके से चिंता करना, ज्यादा सोचना, तो वो ज्यादा टेंशन में आ जाती थी ग्रैंडमदर, ठीक है।
फिर उसके बाद क्या कहता है, सो इट वॉज डिसाइडेड दैट टोटोज प्रेजेंस शुड बी केप्ट अ सीक्रेट फ्रॉम हर अंटिल शी वॉज इन ए पर्टिकुलरली गुड मूड। और ये डिसाइड हुआ, क्या डिसाइड हुआ, किसके बीच में डिसाइड हुआ, ग्रैंडफादर एंड ग्रैंड डॉटर, इन दोनों के बीच में ये डिसाइड हुआ कि टोटो के बारे में हम ग्रैंडमदर को नहीं बताएंगे, अभी नहीं बताएंगे, जब ग्रैंडमदर अच्छे मूड में होगी, जब वो खुश होंगे, तब हम बता देंगे टोटो के बारे में। ठीक है, तो ऐसा डिसाइड हुआ। ग्रैंडफादर एंड आई पुट हिम अवे इन अ लिटिल क्लोजेट ओपनिंग इनटू माय बेडरूम वॉल। और उन्होंने क्या किया, उसको एक छोटे से अलमारी, जो बेडरूम वॉल यानी मान लीजिए दीवार है, तो उस दीवार के साइड में जो अलमारी बनी होती है, उस अलमारी में एक अलमारी बनी थी, उस अलमारी पे उसको, अलमारी में उसको रख दिया या उसको बंद कर दिया। किसको, मंकी को, टोटो को। where he was tied securely, or so we thought, to a peg fastened into the wall। वहां पे क्या है, उस अलमारी में क्या है, एक कील लगी हुई थी, पेग यानी कील लगी हुई थी, जहां पे उसको बांध दिया, इसको टोटो को बांध दिया और उसको अंदर बंद कर दिया, ये सोच के कि वो वहां पे सेफ रहेगा या सुरक्षित रहेगा, ये उन्होंने सोचा था, मगर ऐसा शायद हुआ नहीं। क्या कहता है उसके बाद देखो, फोर्थ पैराग्राफ। A few hours later, when grandfather and I came back to release Toto, we found that the walls, which had been covered with some ornamental paper chosen by grandfather, now stood out as naked brick and plaster। उसके बाद क्या हुआ, कुछ टाइम के बाद जब वो दोनों वापस से आए, कौन कौन, ग्रैंडफादर और जब ग्रैंड डॉटर दोबारा वापस आए कमरे में, मतलब उसको वहां से हटाने के लिए, टोटो को वहां से निकालने के लिए जब वापस आए, तो उन्होंने क्या देखा, we found that walls which had been covered with some ornamental paper। ornamental paper मतलब क्या होता है, जो वॉल पेपर्स होते हैं, किसी किसी घरों में आपने देखा होगा दीवारों के ऊपर पेंट की जगह पेपर्स, ऑर्नामेंटल पेपर, वॉल पेपर लगाया जाता है। ठीक है, तो वो पेपर क्या किया उसने, नाउ स्टूड out as naked brick and plaster। The peg in the wall had been wrenched from its socket, and my school blazer, which had been hanging there, was in shreds। तो क्या हुआ, जो दीवार पे जो एक तो जो प्लास्टर लगा हुआ था या जो पेपर लगा हुआ था, वॉल पेपर लगा हुआ था, वो पूरा उसने उखाड़ दिया था। अब पूरे जितने भी सीमेंट का जो भी वो सब दिख रहा था, और जो पेग, जो खील वहां लगी हुई थी जिसको उसको बांध रखा था, वो खील को उसने वहां से निकाल लिया। ठीक है, और उसका ब्लेजर, जो मतलब कोट था, स्कूल का जो कोट होता था, ब्लेजर था, उस ब्लेजर को भी क्या किया था उसने, बिल्कुल फाड़ दिया था। ठीक है, फिर क्या हुआ, आई वॉन्डर्ड दैट what grandmother would say, but grandfather didn't worry। He seemed pleased with Toto's performance। अब उसको लग रहा था कि अब ग्रैंडमदर को अगर ये सब बातें पता चल गई, इतना कुछ हो गया, तो ग्रैंडमदर क्या कहेगी करके वो थोड़ी सोच रही थी, मगर ग्रैंडफादर क्या थे, ही वॉज ओके, मतलब उनको ठीक लग रहा था, मतलब उनको पता था वैसे भी कि टोटो थोड़ा शरारती है, तो वो एक तरीके से खुश लग रहे थे कि टोटो की परफॉर्मेंस देखे, मतलब उन्होंने बस सिर्फ मजाक में लिया उस बात को। फिर क्या हुआ, he is clever, said grandfather। Given time, I'm sure he could have tied the thrown pieces of your blazer into a rope and made his escape from the window। तो ग्रैंडफादर ने कहा कि ये तो बहुत चतुर है ना, he is very clever, और अगर इसको थोड़ा टाइम और मिल जाता तो ये तुम्हारे जो ब्लेजर्स हैं, जो कोट का जो कपड़ा है, उसको जो फाड़ा है उसने, थोड़ा टाइम और दे देते तो शायद ये बांध के विंडो से भाग जाता है यहाँ से। ठीक है, तो मतलब ग्रैंडफादर के हिसाब से इट वाज गुड, कि मतलब वो ठीक था, खुश है वो उनसे। His presence in the house still a secret, Toto was now transferred to a big cage in the servants' quarters, where a number of grandfather's pets lived very sociably together. A tortoise, a pair of rabbits, a tame squirrel, and for a while my pet goat। But the monkey wouldn't allow of any his companion to sleep at night, so grandfather, who had to leave Dehradun next day to collect his pension in Saharanpur, decided to take him along। अभी तक भी टोटो के बारे में दादी जी को या ग्रैंड मदर को नहीं बताया गया है। ठीक है, अभी तक भी नहीं बताया, वो सीक्रेट है। ठीक है, उसके बाद उस कमरे से निकाल के उसको बड़ा एक केज में रख के, केज में मतलब पिंजरे में बंद करके उसको कहाँ ले गए, सर्वेंट्स क्वार्टर्स, यानी कोई दूसरा कमरा है, दूसरा एक क्वार्टर है, वहां ले गए। वहां पे और भी ग्रैंडफादर के और भी जानवर हैं, जो पेट्स हैं, वो वहां पे आराम से रहते हैं। कौन कौन है वहां पे, कौन कौन से जानवर है वहां पे, एक तो टॉर्टोइस है, ठीक है, पेयर ऑफ रैबिट्स है, रैबिट्स भी है वहां पे, टेम
स्क्विरल, स्क्विरल तो आप जानते हैं, ठीक है, टेम मतलब जिसको ट्रेन किया गया हो, वैसे एक स्क्विरल है। और कुछ टाइम के लिए माई पेट गॉट, वहां पे एक बकरी भी रहती है, ठीक है। बट द मंकी वुडंट अलाउ एनी ऑफ हिज कंपेनियन टू स्लीप एट नाइट, मगर ये जो टोटो है वो इनको रात को सोने नहीं देता, मतलब वहां पे बहुत परेशान करता था, वो हल्ला मचाता था, बहुत परेशान करता था। So grandfather, who had to leave Dehradun next day to collect his pension in Saharanpur, decided to take him along. तो जो ग्रैंडफादर है जिनको अगले वीक, नेक्स्ट वीक जो है देहरादून जाना था, किस काम से जाना था देहरादून, उनको पेंशन कलेक्ट करने के लिए देहरादून तक जा रहा था, तो उन्होंने ये डिसाइड किया कि वो टोटो को भी अपने साथ ले जाएंगे, ठीक है। उन्होंने सोचा अगर वो यहाँ रहेगा तो और परेशानी क्रिएट करेगा, दादी जी को पता चल जाएगा और वो बहुत बड़ा इश्यू हो जाएगा, इसलिए उन्होंने क्या सोचा, इसको साथ ही ले जाते हैं। तो ऐसा उन्होंने सोचा। नेक्स्ट पैराग्राफ क्या कहते हैं, अनफॉर्चुनेटली आई कुड नॉट अकम्पनी ग्रैंडफादर ऑन दैट ट्रिप बट ही टोल्ड मी इट आफ्टरवर्ड्स अ बिग ब्लैक कैनवस किट बैग वाज प्रोवाइडेड फॉर टोटो। मगर क्या हुआ, जो ग्रैंड डॉटर थी वो ग्रैंडफादर के साथ देहरादून नहीं जा पाई, ठीक है, वो नहीं जा पाई। मगर ग्रैंडफादर ने पूरी कहानी सुनाई कि वहां पे हुआ क्या, क्या हुआ। अ बिग ब्लैक कैनवस किट वाज प्रोवाइडेड फॉर टोटो, एक बड़ा बैग, ठीक है, एक बड़ा बैग जो है टोटो के लिए प्रोवाइड किया। दिस विथ सम स्ट्रॉ ऑफ बॉटम बिकेम हिज न्यू अबॉर्ड, और कुछ थोड़े बहुत यहाँ वहाँ छेद, नीचे से छेद कर रखा ताकि वो सांस ले सके, वहां रख रखा था, और वो उसका नया अबॉर्ड, अबॉर्ड मतलब एक नया घर बन गया था वो बैग, ठीक है। व्हेन द बैग वाज क्लोज देयर वाज नो एस्केप, जब उस बैग को पूरी तरह से बंद कर दें तो फिर आप वहां से निकल नहीं सकते। Toto could not get his hand through the opening and the canvas was too strong for him to bite his way through. और वो जो बैग बंद करने के बाद बाहर नहीं निकल सकते थे, तो टोटो अपना हाथ भी बाहर नहीं निकाल सकता था, और वो इतना स्ट्रॉन्ग बैग था कि वो काट भी नहीं पा रहा था उसे। फिर क्या हुआ, his efforts to get out only had the effect of making the bag roll about on the floor or occasionally jump into the air. अब क्या हो रहा था, वो बार बार बहुत कोशिश कर रहा है कि वो उसमें से निकल जाए, मगर निकल नहीं पा रहा। तो जब वो कोशिश करता था तो कभी कभी बैग अपना आप लुढ़कने लगता था, रोल आउट हो जाता था, या कभी कभी वो जंप करता था तो बैग भी अपना आप जंप करता था, ठीक है। तो क्या होता था फिर, एन एग्जीबिशन दैट अट्रैक्टेड अ क्यूरियस क्राउड ऑफ ऑनलुकर्स ऑन द देहरादून रेलवे प्लेटफॉर्म। और उससे क्या हुआ, लोग बाग देखने लगे, लोग बाग क्या देखने लगे, जो प्लेटफॉर्म है देहरादून प्लेटफॉर्म पे, रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पे जो लोग बैठे थे, वो देख रहे हैं कि एक बैग जो है अपना आप उछल रहा है ना, अपना आप रोल कर रहा है। तो ऐसी चीजें वो करने लगा, तो लोग बाग अट्रैक्ट होने लगे, लोग बाग देखने लगे। तो अभी तक हमने यहाँ तक देखा है, हमने देखा कि कैसे टोटो को ग्रैंडफादर ने ले लिया है, खरीद लिया, वो घर पे लेके आते हैं, मगर उन्होंने ग्रैंडमदर को नहीं बताया है कि वो एक जानवर को या मंकी को लेके आए हैं। फिर उसके बाद वो उसको एक क्लोसेट में यानी एक अलमारी में बंद कर देते हैं, मगर वहां से वो बच के निकल जाता है, वो तोड़ देता है, पूरे पूरे वॉलपेपर को फाड़ दिया, उसके ब्लेजर जो कोट है उसको फाड़ दिया, और पेग यानी जो कील है उसको भी निकाल दिया, है ना, वो भाग गया। ग्रैंडफादर खुश है, उनको पता है कि ये थोड़ा नटखट है या काइंड ऑफ मिस्चीवियस है, नॉटी है, ठीक है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि उसको सीक्रेटली उसको दूसरे जानवरों के साथ शिफ्ट किया गया, मगर वहां पे वो बहुत परेशान करता था, दूसरे जानवरों को सोने नहीं देता था रात को। अब इसलिए ग्रैंडफादर जो है, जो देहरादून जा रहे हैं, वो क्या करते हैं, उसको अपने साथ ले जाते हैं, अपने साथ लेके जाते हैं। तो वहां पे क्या होता है, उसको एक बैग में बंद करके देहरादून के रेलवे स्टेशन पे वो बैठे हैं, जहाँ पे वो निकलने की कोशिश कर रहा है। अब आगे क्या हुआ वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आगे आप चैप्टर पढ़ सकते हैं, आगे क्या हुआ हम देखेंगे कि ऐसा क्या हुआ वहां पे, उस प्लेटफॉर्म पे क्या हुआ, टोटो ने क्या किया, उसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो मैं मानता हूँ आप सबने एक तो बुक खरीद ली है और आप लोग ये चैप्टर पढ़ रहे हैं, ये चैप्टर आपको पढ़ना है प्रॉपरली, ठीक है। आगे आप पढ़ के आएंगे, फिर उसके बाद हम लोग क्लास में एक साथ इसको पढ़ेंगे, ठीक है। तो उसके साथ साथ जैसे मैंने आपको कहा अबाउट द ग्रुप, आपको आपके होमवर्क जो है फोटो खींच के नाम लिख के भेजना है ग्रुप में। नो अदर कॉन्वर्जेशन इन द ग्रुप, कोई भी कॉन्वर्जेशन ग्रुप में नहीं होगा, सिर्फ क्वेश्चन ही आपको पूछना है, उसके अलावा सिर्फ होमवर्क भेजना है, या कोई कंफ्यूजन है वो पूछना है, उसके अलावा आपको कोई भी प्रकार का जो है फालतू की बातें उसमें नहीं करनी है, ठीक है। तो टिल देन रीड द चैप्टर, रीड द फुल चैप्टर एंड स्टे सेफ, वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो, स्टे सेफ,
stay at home and prepare what you have done. अगर अभी तक आपने होमवर्क नहीं किया है तो होमवर्क कंप्लीट करें. आपके पास संडे आज का पूरा दिन है, संडे का दिन है, आपके पास मंडे का दिन है, आपको होमवर्क भेजने हैं. अकॉर्डिंग टू दैट फ्रॉम नेक्स्ट वीडियो आई विल पुट दी अटेंडेंस. अगले वीडियो के हिसाब से मैं अटेंडेंस डालूंगा. ठीक है. टिल देन स्टे सेफ, stay at home and get ready for the online classes. Okay, thank you.